Hello my viewers. In this video, we will be dealing about our new chapter, that is the magnetic effect of electric current. So you all might know about the electricity and its effects, which you have studied in the last chapter. In this chapter, we will be studying only about the magnetic effects. What do we understand by the term magnetic effects? See students, we all know that when an electric current can produce heating effect, in the similar manner, an electric current can produce magnetic effect too. Now, how we will understand it? See, what does the term magnetic effect of electric current means? It just means that an electric current flowing in a wire, if the electric current is flowing in this wire, it will produce what it will do? It will produce the magnetic field around it. And how can we check it, students? If this compass needle shows the deflection, अगर ये compass needle deflection show कर रही है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. और कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. So in another words, we can also say that an electric current can produce magnetism. So we will be studying more about it and we'll clear more concepts of the magnetic effects of electric current through this video. First of all, we will discuss what all things we will be studying in this particular chapter. See students, we will be studying about what is a magnet, what are the magnetic field lines, and how the magnetic field lines are formed around the specific things. That is, how the magnetic field lines are formed around bar magnet, straight current carrying conductor, circular wire, solenoid, and many more things. And secondly, we'll be also talking about the direction of the magnetic field and using these different rules. See students, ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इन चारों में से कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली आपका बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है. दैट व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर अराउंड सोलेनॉइड, या फिर सर्कुलर वायर. हम एक एक करके पढ़ेंगे और इस चैप्टर का हाफ पोर्शन हम आज करेंगे और हाफ कल. 2 days में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ. चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाती हूँ. देखिए, व्हाट डू यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस पिक्चर? यू कैन ईजली सी दैट देयर इज एन आयरन नेल एंड ओवर द आयरन नेल वी हैव कवर्ड इट विद द इंसुलेटेड कॉपर वायर. जब इस कॉपर वायर में से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करती हूँ, कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच भी है. तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है? ये हमारी आयरन नेल टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है और टेम्पररी मैग्नेट बनकर अलग अलग पिन्स को या फिर आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है. अब ऐसा क्यों हुआ कि इस हमारी जो बड़ी आयरन नेल थी, इसने आयरन पिन्स को अट्रैक्ट किया? वाई इट हैपेंड? सिंपली किसकी वजह से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. नॉर्मली इस वायर में, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था तो आसपास क्या बनी है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आयरन पिन्स अट्रैक्ट हुई हैं. So simply we can say that an electric current flowing in the coiled copper wire has turned what? This iron nail into a magnet. And this is an example of magnetic effect of electric current. So it can be simply asked, what is the example of magnetic effect of electric current? You can quote this example. Is it clear? Thank you students, it's great. I am seeing many people are joining. If you want any concept to be repeated and if you want video on any particular topic, you can comment. I'll surely discuss away with your problems. Next, we will start with the magnet. What is a magnet, students?
सी, अब हर मटेरियल मैग्नेट नहीं बन सकता और हर मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक मटेरियल है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, मैग्नेट इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और कौन से सब्सटेंसेस हैं वो? आयरन, निकल, कोबाल्ट, इवन स्टील। मैग्नेट अपनी तरफ स्टील को भी अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट किन किन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है? हम दोबारा रिपीट करेंगे, ध्यान से सुने। आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, these are basically the 4 items which magnet attracts toward itself. आपसे MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, कौन सा नहीं कर रहा, चेक आउट द ऑड वन आउट। तो आपको क्लियर होने चाहिए कि यही 4 मटेरियल्स बेसिकली हैं जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में। क्या है मैग्नेट? मैग्नेट एक वो मटेरियल है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बना के चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। कौन से मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसा कि हम जान चुके हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि लोडस्टोन एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। इवन इट कैन be asked what is the naturally occurring magnet, name the naturally occurring magnet, because you all do not have tendency to go through the NCERT and read NCERT। वैसे मैं आपको पर्टिकुलरली रिकमेंड करूंगी जब भी एक चैप्टर कंप्लीट करे पूरी NCERT रीड करे ही करे, कम से कम एक बार तो पक्का। तो छोटी छोटी बातें आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स तब निकल कर आएंगी। आपको ध्यान रखना है कि लोडस्टोन एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। अब जब आप मैग्नेट के बारे में बात कर चुके हैं, आपको इतनी सिंपल सी बात समझनी है कि मैग्नेट सिर्फ इसी शेप का नहीं होता। मैग्नेट की अलग अलग शेप भी होती हैं। आपने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मैग्नेट यू शेप्ड होता है, मैग्नेट हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट होता है। तो अलग अलग शेप्स और साइजेस का मैग्नेट होता है। बट अगर हम सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ करा हुआ मैग्नेट पूछें जो हमारी साइंस लैब्स में यूज़ होता है, वो होता है बार मैग्नेट। Which magnet it is, my students? Bar magnet. So what is the difference between the bar magnet and the different types of magnet? Bar magnet वो मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब सब जगह सेम एरिया का है। ये नहीं कि कहीं से थिक है एंड कहीं से थिन है। इट इज़ ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया, सब जगह से सेम एरिया का है। और ऐसा मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, यूनिफॉर्म एरिया का होता है, उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। हाँ जी, साइड बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई सी भी साइड बुक्स प्रेफर करें, बट सबसे पहले NCERT। 95% आपका बोर्ड का पेपर NCERT से आता है। एंड इवन यू गाइज डू नॉट रिवाइज द बैक क्वेश्चंस एंड डू नॉट गो थ्रू द बैक एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ NCERT, एंड दैट्स व्हाट योर मार्क्स लैग बिहाइंड विथ। सबसे पहले अच्छे से NCERT करें, फिर आपकी पूरी तैयारी हो गई, आपको सब समझ में आ गया, तो आप कोई सी भी बुक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना लास्ट में सैम्पल पेपर्स गो थ्रू कर लें। लास्ट 5 ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मैं डिस्कस कराऊंगी, आपको उससे भी हेल्प हो सकती है। सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बट उससे पहले आप देख सकते हैं और आप जानते भी हैं कि मैग्नेट के 2 पोल्स हैं। What are the 2 poles of the magnet? That is the north pole and the south pole. 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के। अब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट को मैं थ्रेड से हैंग कर दूं और उसे फ्रीली छोड़ दूं तो वो हमेशा नॉर्थ पोल में जाके रेस्ट करेगा। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है। एक सिंपल सी बात और, इस मैग्नेट के पास मैं एक और मैग्नेट लेकर आऊं जिसकी साउथ पोल ही मैं पास में ला रही हूं, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? 2 मैग्नेट के सेम पोल्स पास में आ रहे हैं। एनी आइडिया? इफ 2 like poles come nearby each other, what would be the force experienced? Yes, it is repulsion. वो रिपेल होता है। रिपेल मतलब दूर भागते हैं, एक इधर जाएगा तो दूसरा उधर फोर्स लगाएगा। बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल करती हैं। और अगर मैं एक सेम एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि एक तरफ साउथ पोल था,
अब इस साउथ पोल की तरफ मैं नॉर्थ पोल लेकर आऊं, तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है किसके, साउथ पोल के, और ये क्या हो गया हमारा, अनलाइक। अनलाइक मतलब डिसिमिलर, अलग अलग। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम सेम साउथ साउथ पास आ रहे हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब हम जानते हैं कि कितनी जगह हमने मैग्नेटिक या मैग्नेट्स का हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कितनी जगह पे होता है। दे आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर्स, हार्ड डिस्क, दे आर सो मैनी थिंग्स। और अगर मेडिकल वर्ल्ड में जाने तो MRI, हम MRI टेस्ट कराते हैं बट हमें पता नहीं, इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। MRI भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जो मैग्नेट के बेसिस पे वर्क करती है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास ये मैग्नेट है और एक आयरन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा आयरन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को तो मेरा मैग्नेट एक्सर्ट कर पा रहा है, अपनी तरफ खींच पा रहा है इस आयरन के ऑब्जेक्ट को, बट इस दूसरे ऑब्जेक्ट को मेरा मैग्नेट नहीं खींच पा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को मेरा मैग्नेट एक्सर्ट कर पा रहा है फोर्स और सेकंड वाले को नहीं? क्योंकि इस मैग्नेट का कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ तक वो फोर्स लगा पा रहा है, और उस मैग्नेटिक के एरिया को जहाँ तक मेरा मैग्नेट फोर्स लगा पा रहा है, इस मैग्नेट का ये जो ब्लैक सर्कल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है, जिससे मैग्नेटिक फोर्स से खींचे जा सकता है, फोर्स लगती है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई विल रिपीट, कम we'll go ahead with the definition. The region मतलब स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उस एरिया, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ पोल की तरफ होती है। माय स्टूडेंट्स रिमेंबर, नॉर्थ पोल की तरफ। इतनी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है सो दैट योर कंसेप्ट्स गो क्लियर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आप इस बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये जो मैंने आपको पिक्चर शो करी है इस इमेज में, ये एग्जैक्टली है क्या माय स्टूडेंट्स? ध्यान से समझिए। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यूजिंग आयरन फिलिंग्स। क्या करा हमने? सिंपल सा कंसेप्ट लिया है, हमने एक बार मैग्नेट को रखा और उसके आसपास आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल मतलब छिड़कते हैं, जैसे हम सॉल्ट छिड़कते हैं, वैसे ही बहुत स्मॉल साइज़ की ये आयरन फिलिंग्स हैं जिनको हमने स्प्रिंकल किया इस बार मैग्नेट के अराउंड। और जब हमने स्प्रिंकल किया तो हमने क्या नोट करा कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिल रही हैं। सो व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग? दैट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, कैसा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है एक बार मैग्नेट के अराउंड, किसकी वजह से? आयरन फिलिंग्स की वजह से। सो दीज ब्लैक लाइन्स इन द पिक्चर विच यू कैन सी आर इंडिकेटिंग आयरन फिलिंग्स which are showing the magnetic field lines. I hope is it clear? Next, we'll be talking about the magnetic field lines around a bar magnet. ये सबसे ज़्यादा important question है कि कैसे magnetic field lines होती हैं bar magnet के around, और इससे बहुत ज़्यादा छोटे questions आ जाते हैं, कितने अलग अलग तरीके के questions पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से समझना है। पहली बात, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कंटिन्यूस है और क्लोज्ड कर्व्स हैं। दो मैग्नेट के ऊपर से नहीं, बट रेगुलरली दे आर क्लोज्ड कर्व्स। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज दे आर कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स, लगातार हैं और क्लोज्ड हैं। नेक्स्ट, अगर मैं हर पॉइंट की डायरेक्शन की बात करूं, अगर मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछनी है तो इस पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री बनाना है।
अगर मेरे को इस पॉइंट पे पूछनी है तो भी 90 डिग्री, इस पॉइंट पे पूछनी है तो भी 90 डिग्री, और हर पॉइंट पे जब हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. व्हाट डू वी से इट एज स्टूडेंट्स? टेंजेंट. सो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट टू द फील्ड. टेंजेंट मीन्स 90 डिग्री का एंगल. किसी भी फील्ड पर क्या इंडिकेट करता है? उसकी डायरेक्शन. आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं. द टेंजेंट टू द फील्ड मीन्स 90 डिग्री बनाओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, आपको उस पॉइंट पर डायरेक्शन पता चल जाएगी. एम आई क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर द नंबर ऑफ लाइन्स. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि कितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स हैं, देखिए जितनी दूर फील्ड लाइन्स हैं उतना कम फोर्स लगेगा, और जितनी पास हैं और जितनी ज़्यादा हैं उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी फील्ड लाइन्स आर और कितनी स्ट्रेंथ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, हमें पता चलेगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस. मतलब जितनी ज़्यादा क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे की उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, और जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज है उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड है. सो बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स. कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से. एंड वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर, सबसे ज़्यादा क्लोज कहाँ पे है? यहाँ पे. वहीं पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है. आपको इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करना है. प्लीज़ ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का और समझें हर एक बात को. सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी डिस्कस, दीज आर द कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व्स. If we talk about the direction is given by the tangent. If we talk about the strength, सबसे ज़्यादा strength कहाँ पे होगा? सबसे poles पर. If we talk about where is the maximum strength observed in the magnet, it is observed near the poles. Next, if we talk about the intersection, there is no intersection between the magnetic field lines. इसका तो give reason direct question है. Why magnetic field lines never intersect each other? इतनी बातों का भी ध्यान रखना है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो इसका भी मैंने अभी आगे आपको डिस्कस करूंगी, क्या प्रॉपर आंसर आप लिखेंगे. तब तक इफ एनीबडी वांट्स यू कैन सिंपली टेक अप द स्क्रीनशॉट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड. द क्वेश्चन कैन डायरेक्टली कम, write the properties of magnetic field lines. You can take up the screenshot and mark it what all you need to write in the characteristics of magnetic field lines. Next students, if we talk about magnetic field lines around bar magnet, अभी भी हमने यही पढ़ी थी. अब इनकी डायरेक्शन के बारे में ध्यान दें, इससे क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में आता है. और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, फिर आप समझ पाएंगे और कोरिलेट कर पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हम क्या गलती करते हैं. देखिए, अगर बात करें, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और अगर एरो को देखें तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर कैसे मूव करते हैं हमारी लाइंस? दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो आउटसाइड द मैग्नेट, व्हाट? Outside the magnet, the direction of magnetic field line is from north to south, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. और अगर मैग्नेट के इनसाइड की बात करूं तो दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. आपको ध्यान रखना है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ. तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं तो कैसे मूव कर रही हैं? नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू south to north. Now, as we have already talked about the strength is indicated by the closeness of the field, and the maximum strength is near the pole. सबसे ज़्यादा strength कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? poles के पास. crowded field lines, जितनी ज़्यादा crowded field lines होंगी उतनी ज़्यादा magnetic field strength हमारी होगी. Moving ahead, this is the most important question which is asked, why don't two magnetic lines of force intersect each other? ऐसा क्यों होता है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती? जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक पॉइंट पर हम
टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जिससे हमें डायरेक्शन पता चलती है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। कभी भी एक पॉइंट पर नॉर्थ पोल एक ही साइड होगा। नॉर्थ पोल एक समय दो साइड में नहीं हो सकता। और ये जो हमारी टेंजेंट है ये हमें क्या दिखाती है? नॉर्थ पोल। तो the magnetic field lines never intersect each other. And why do they never intersect each other? Because at a particular time north pole can be in one single direction. एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ पोल हो सकता है। दोनों डायरेक्शन पे एक टाइम पे नॉर्थ पोल नहीं हो सकता। इसे अब हम समझेंगे। The magnetic field lines never intersect each other एज एन इंटरसेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स। जो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इंटरसेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हैं? 1 and 2। देयर आर 2 डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक पॉइंट पर दो जगह नॉर्थ पोल हो। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नॉट पॉसिबल। अगेन स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लर्न इट प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड्स, because these questions are asked directly. Further, if you are drawing the diagram and you're showcasing it with the help of a diagram, it would give a clear and a nice impact to the examiner कि आपने कितने अच्छे से समझा है, आपको कितने concepts आपके clear हैं। Next, अभी तक जितना भी पढ़ा हम वो रिकॉल करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इफ यू विल गो carefully and clearly, I am marking the 2 points A and B. Looking at this figure carefully, you just need to tell me कि A marks which pole and B marks which pole. आपको देखकर ये बताना है कि इन दोनों में से नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है। अभी तक हमने कितने कंसेप्ट पढ़ा था बार मैग्नेट के अराउंड, और मैंने आपको बताया भी था कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एग्जामिनर पूछ रहा है। तो जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर एंड ट्राई टेलिंग, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे सोच के पढ़ के बताओ कि क्या ए और बी में से आपको पता है ए कौन सा पोल है और ए पे कौन सा पोल है और बी पे कौन सा पोल है। ओके, आई एम गेटिंग सम आंसर्स। ग्रेट पायल, बट just check out once again. Hurry up, I am waiting for your responses. These type of questions are basically asked in the boards to check out कि कितने आपके concepts clear हैं, कौन सा पोल कौन सी डायरेक्शन किस समय शो कर रहा है। ओके सार्थक, आई एम अगेन वेटिंग फॉर द आंसर्स। ठीक है, ग्रेट पायल, नाउ यू हैव रिटन करेक्टली। आकाश, Tanuj. Okay students, so without wasting time, I would like to tell you what are the directions and which pole is it. Students, ध्यान से बात को समझिए। ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर मैं इसे फील्ड लाइन को कंप्लीट करूं और इस फील्ड लाइन को कंप्लीट करूं, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट तो कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स हैं। चलो एक एक कर्व कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा सर्कल बन गया जिसमें डायरेक्शन क्या आ रही है, ऐसे। अब अगर मैंने आपको समझाया था कि आउटसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की बात करें तो क्या होती है मैग्नेट की डायरेक्शन। आउटसाइड मैग्नेट की डायरेक्शंस कैसी हैं? इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मतलब जब एरो इधर जा रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ए हमारा कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है और ये इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। सो दिस इज अवर साउथ पोल। अगेन इफ वील टॉक अबाउट द बी मैग्नेट, हमने कंप्लीट करा। इफ वी हैव कंप्लीटेड, अब कहाँ पे जा रहा है हमारा, किधर साइड हमें डायरेक्शंस देखने को मिल रही हैं। सी स्टूडेंट्स, अगेन this is moving, the arrow is pointing towards this direction, so it is showing that it is moving from north to south, साउथ की तरफ ही मूव कर रहा है। तो हमारा ए कौन सा पोल है? साउथ पोल है स्टूडेंट्स।
और बी भी कौन सा पोल है? यस, बी भी साउथ पोल है. So the questions are asked in this particular manner that you need to think and tell which pole is it. So I hope you are clear with the concept कि आपको कैसे सोचना है, समझना है और पोल्स समझने हैं, बताने हैं कि कौन सा सही पोल है हमारा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज़ वॉट वी विल बी डूइंग टुडे, बिकॉज आज आपके लिए नया टॉपिक है. इससे ज़्यादा कराया जाएगा तो बिल्कुल सब कुछ कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. टुमारो बेसिकली आई विल बी टेलिंग यू हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड. जैसा कि मैंने आपको डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं और कौन कौन से रूल से हमें डायरेक्शन पता चलती है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. सो टिल देन, thank you students, and remember that your hard work and your dedication will only lead to success. Please subscribe my channel if you haven't, and like and share if you understood the topic. Thank you for the session.